Hi guys, so today we have another CA Sabina Pujani, who has recently cleared one of the interviews. So she will be sharing her experiences. She cleared in direct taxation interview, direct indirect tax interview. So she will be sharing her experiences about her program also, and we are very happy that she got cleared her interview. Okay, yes, Sabina, all up to you. Yeah. Yes. Firstly, thanks because actually I reached here uh, and I want to share my experience. When I वो सारे इंटरव्यू दिए but actually I was confused that what is the process because starting point is starting point is so hard to determine what is the starting because at the end start point is so much necessary to reach out the end of every stage. So when I hear about the Ghanshyam sir GS mentorship program, actually I see firstly in the LinkedIn about this mentorship program. So then sir has connected me about the all detail how he process all the things. Uh, in this, I can tell you that the one-to-one mentorship has given to all the students. Sir has cleared the doubt. For example, if suddenly has the interview call and we tell the sir that the today is my interview and tomorrow is my interview, what can I do? So sir has give the proper guidance, proper what is the process, what is the question, and one-to-one session has also at quickly conducted at sir level because I can tell you all that I am very lucky to join this mentorship program because when I searching how to do what is the first step, I search many mentorship, so it's difficult to decide which one is the best. So I can't further complain that why I joined this program. So Yes. so sir has explained all the things one to one, explain little much and ask the question that what is the process. For example, if we can go to the stat audit profile, we can go to the direct audit tax profile. What is the question and how we prepare the question? And he can connect on regular basis, not one day he can active and other day he is not active. So her sir can we can say that the 24 into 7 sir can available. So he has helped me regarding my journey to reach out because firstly I have don't have any motivation, don't have any Right. confidence that how we explain and what is in the front of the interview, how can we explain. So while attending the session, while attending the classes, uh, a little, not a little, very both changes, very much changes toward my personality, toward my speaking about English the speaking also so much difficult actually. So most of the chartered accountants face with difficulty while yes, speaking only. So that is very important. yes, That we are and yes, we are yes, the only one who actually helps the people who are facing difficulty while they speak in English, or they have yes, yes, they have a problem with communication skill, they have a problem of confidence, they have a problem with practical knowledge. yes. Firstly, we can say that the negative thought has gone. Because when I join, one thought that I can't go to the big four, I can't go to my dream job. So when we join this program and attending the session, different kind of change toward our personality, that how we motivate ourselves. Because when we are preparing all the level, motivation has come in our mind, so we clear all the things. No one Right. no कोई कुछ भी difficult नहीं है session attend Right. I करके. wanted to know like what type of questions were asked in your interview. You gave in Avasor Technology Solution. What type of company is this and what type of questions were asked? Actually it is a
IT company, global company. It has a branches in we can say in 40 countries, and divided into different regions. For example, China, Thailand, and other countries, South Korea, New Zealand. So it mainly prepare the consolidation. So firstly, question has asked from the interviewer has the how we prepare the consolidation balance sheet. What is the process? How we can do to consolidate data, stat audit, internal audit, because monthly in this internal audit has been done in the books of account. It's mainly include foreign accounting also. So second is a GST question, that place of supply, how we determine when we supply goods and services to foreign country. So how we determine the place of supply. And other one is TDS section, because India is a one of the reason in this, because all it is a head office in this IT company in the India, and the branches are in the foreign country. So all working are in India. So he can tell me about the TDS section, TDS applicability, India's applicability, because in foreign country VAT are also applicable. How we file the VAT return, little much concept about the VAT return. So all thing, little all direct tax, indirect tax, and stat audit profile and How much internal study audit. is important you All felt? the Okay, now, yeah, I think studies are very important. How much is study so important for CA freshers? Because once you clear chartered accountancy course, okay, you tend to ignore the studies part, okay, and you think that it's easy to clear an interview, but you have it all on share of a lot of mistakes that you might have made, okay. Uh, what are some mistakes that you made, okay, that can really help somebody else not to repeat those mistakes as a CA fresher? Yes, my biggest mistake that I can't join this program after becoming a CA immediately. Yeah, before after giving the exam at the end of the level, so we can join at this point. For example, today is declaring the CA result, and we become the CA. And at this point, we can join this program. This can, because after becoming a CA, opportunity are coming up, and after that opportunity has going, we can run to this opportunity. So one of the biggest mistake is that the when I clear the CA, I can't attend the this mentorship program, this mentorship or any mentorship लिटिल program. लाउडर एक्चुअली आपका आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है। हाँ, मेरे को लग रहा है। हाँ, Okay, हाँ। okay. हम्म। Now my voice is आप clear. अगर एयरफोन को थोड़ा Yes. ऊपर रखिएगा तो और इजी रहेगा मेरे को लग। हाँ, हाँ, Y- हाँ, यस, Yes, यस। yes. Actually, I can say that after becoming a CA, first step हम्म। is to join the mentorship program, GS mentorship program, because at this point the opportunity has come easily. But after that opportunity has gone, we can run to the opportunity to gain the opportunity. Because as So a CA choice fresher, is you get yours. a lot of opportunities, and we don't know which opportunity is good for us, which opportunity is not good for us. So I can guide you as a big Yes. brother also कि ये opportunity आपके लिए सही है, ये आपके लिए खराब है। वो भी एक बहुत बड़ा बात है। जॉब वैकेंसीज हो गया, इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गया, मटेरियल हो गया, मॉक इंटरव्यू हो गया, इंग्लिश नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको पता है कि एक एरिया में सब कुछ मिल जाएगा एट अ रीजनेबल कॉस्ट। अदरवाइज आपको हर Yes. जगह कंफ्यूज होते रहेंगे, कहाँ जाए, कैसे जाए, क्यों जाए। तो हमेशा ये कंफ्यूजन में गलत जॉब ले लेंगे, या तो जॉब नहीं मिलेगा, या तो गलत जॉब ले लेंगे, तो आपको हमेशा ही दिक्कत आएगा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेशर। एंड दिस इज वन टू वन Yes. मेंटोरशिप। नो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वन टू वन मेंटोरशिप? मान के चलिए है 500 सीए है, और व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ ओके, जी। एक जगह से बात करना है 500 आदमी में, भीड़ में आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि आप सीख रहे हैं, बट एक्चुअली आपको सीख रहा ही है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। करना क्या वो नहीं पता फिर इसके सीखने के बाद। हाँ, तो वो because एक in that we can't because can't analyze one एक्शन to नहीं ले one पा रहे ना, basis. यू आर नॉट एबल टू टेक Yes, because एक्शन। हर किसी का एक अलग होता है। किसी को प्रॉब्लम। इजीली समझ आता है, कैचिंग पावर जल्दी होती है, कम होती है। सो वन टू वन हाँ, मेंटरशिप वी हेल्प दैट द on the basis of their ability, that how he or she explain their level. So one आपको to one होमवर्क पता चल mentorship जाए is आपको करना helpफुल क्या है that एग्जैक्टली। आप अपना ध्यान yes देते हैं yes कि आपको यही होमवर्क करना है, इसमें आपको माथा लगाना है, वो आपको पता चल जाता है। नहीं तो आप कंफ्यूज रहता है कि आपको करना क्या है।
आप ज्ञान तो ले लिया, आप ज्ञान को प्रोसेस कैसे करना वो नहीं पता आपको। दैट इज द प्रॉब्लम दैट मेनी बिग पीपल फेस। आपको 100 जगह बता यस, दी इधर किसको भी कितनी जॉब्स है। गाइडेंस चाहिए? हाँ, आप वो बता दिए कि आप इधर भी चल जाओ, उधर भी चल जाओ, ऑडिट, टैक्स, फाइनेंस, एफडीडी, वैल्यूएशन, ये ट्रांसफर प्राइसिंग, सब कुछ है, ओपन है, पर जाना कहाँ पर है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, किसको पकड़ना है जाने के लिए, प्रिपेयर कैसे करना है, मॉक इंटरव्यू कैसे होगा, प्रैक्टिस कैसे होगा, नो आइडिया। तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाता है। और मैंने तो देखा है, एक इंसान को एक बार बताने से वो नहीं समझता है, उसको कम से कम 5 बार बताना पड़ता है, ये चीज में आपको माथा लगाना है। तो वो चीज भी बहुत जरूरी है, इसलिए 1 to 1 चाहिए। क्योंकि आपको एक चीज दे दिया, उससे थोड़ी ना आप 2 मिनट में कर लेगा वो काम को। उसको एटलीस्ट फॉलो अप यस करना यस पड़ेगा, कम से कम मेरे को 5 बार या 6 बार, तब जाके उसका ब्रेन में सेट होगा, हाँ, कि दिस इज द प्रोग्राम फॉर मी, ही इज वर्किंग मोर हार्ड देन मी फॉर क्लियरिंग माई इंटरव्यू। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आई हैव वर्कड मोर हार्ड देन द जॉब सीकर देमसेल्फ टू क्लियर देयर इंटरव्यू। That is very यस important. यस यस Right? यस Many programs, they will take the money, then they will make you join the classes, and then you take the class, you attend the class, you don't attend the class, nobody is interested. Our here, we are much more interested in getting you placed. That is the difference. यहाँ पर हम लोग चाहते हैं आपको नौकरी नहीं करने का मन भी हो, तब भी आपको जबरदस्ती का नौकरी करवाएगा। That is that और is something. एनालाइज, खुद को हाँ, एनालाइज करने का हाँ जी, हेल्प करता है भी। खुद को हाँ। एनालाइज कि तुम अपनी ड्रीम जॉब चाहते हो तो क्या हम्म, पाथ है, तो क्या वो बात। पाथ हमें पता प्लस आई यस टेल यू यस ऑल्सो अबाउट दैट मिस्टेक्स ऑल्सो यूर डूइंग योर, आपका वीकनेस भी बता देता है कि आप ये वीकनेस के कारण ग्रो नहीं हो पा रहा है, जो नोबडी विल टेल यू। यस Nobody will, everybody will tell you good points about you all the time. Nobody has the power to यस tell you bad things about you. कोई भी आपको बताएगा नहीं कि ये प्रॉब्लम है सबीना आपके पास, आपका प्रॉब्लम ये है, ये कारण से आप ग्रो नहीं हो पा रहा है, दिस इज द प्रॉब्लम बाई विच यू आर नॉट एबल टू ग्रो। क्यों नहीं बताएगा, उसको लगेगा भाई बता के वो गुस्सा हो जाएगा सामने वाला। पर अपना काम एज अ मेंटर बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट इज द वेरी डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ मेंटर, बिकॉज उसको बताना पड़ेगा सामने वाला को, भले उसको खराब लगे सामने वाला को सुनने में, पर उसको फेस में बताना पड़ेगा भाई तुम ये कारण से ग्रो नहीं कर पा रहा है लाइफ में, ये चीज आप इम्प्रूव करो। यस And that is very difficult. And then to make that person implement the things, that is very very difficult for a mentor to do, because उसको देखना भी है मेंटी को किस लैंग्वेज में ज्यादा समझ में आता है। इज द पर्सन गुड विथ डूइंग थिंग्स बाय स्कोल्डिंग, और दिस पर्सन गुड बाय मोटिवेटिंग। तो हर पर्सन का नेचर देख के हमको बताना पड़ता है कि हाँ ये पर्सन ये तरीका से ज्यादा समझेगा बात, ये पर्सन का अलग तरीका से समझेगा वो चीज। समझे रहे? तो यस वो यस चीज वो बहुत चीज ग्रुप जरूरी में होता नहीं है। होती। हाँ, वो चीज ग्रुप में पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज कंफ्यूज होते रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या होता है, 50 आदमी है तो आपको पता ही नहीं, आप 50 आदमी को रीच आउट करेगा, इसको रीच आउट करो, उसको करो, उसको करो। उसको पता है कि प्रॉब्लम होगा तो हाँ मैं यहाँ पर, मैं कि कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी डाउट होगा, तो आई विल बी एबल टू सॉल्व दैट डाउट। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ 1 to 1 मेंटोरशिप। आई फील कि वही चीज, और यस नौकरी में तभी इजिली लग जाता है लोगों का। अगर नौकरी में, और मैं जो कॉस्ट में कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, हम ये तभी कर पा रहे हैं विदाउट द कॉस्ट ऑफ अ वेबसाइट और प्रमोशन और मार्केटिंग। अदरवाइज अगर मार्केटिंग करने लग जाएगा तो कॉस्ट इतना इंक्रीज हो जाता है कि इवन आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड। मैं बहुत कम यस कॉस्ट में कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज इंडिया में वैल्यू ऑफ टाइम ही नहीं पता लोगों को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ टाइम ऑफ अ प्रोफेशनल? मैं 1 घंटा अगर एक आदमी से बात करूंगा, और 1 घंटा में 500 रुपया लेके 500 आदमी से बात करूंगा, एक घंटा में, या 3 घंटा, या एक आदमी को मैं 10-10 घंटा देता हूँ बहुत मिनिमम फीस में। अब वही 1 घंटा यस या यस 2 घंटा में मैं चाहूँ तो 200 रुपया करके भी, या 199 करके भी, 500 आदमी को कैसे भी करके लाके प्रोग्राम में डिजिटल मार्केटिंग के सहारे से कमा सकता हूँ। इट इज पॉसिबल यस यस डेफिनेटली, राइट? 199, 99 वो आपको सस्ता लगता है, पर आपके लिए कितना महंगा होता है वो आप पता नहीं है। 99, 199, 299, 399, वो 1 घंटा में 500 या 600 आदमी आना कोई पॉसिबल डिफिकल्ट काम नहीं है, विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया एजेंसी नाउ डेज। एक वेबसाइट बनाना है, एक सेल्समैन रखना है, एक मार्केटिंग करना है, पर अल्टीमेटली उससे फायदा क्या हो रहा है सामने वाला को? सामने वाला तो कुछ इंप्लीमेंट कर रहा ही नहीं है अल्टीमेटली, ना उसका नौकरी लग के रह रहा है, कुछ हो रहा ही नहीं है। तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन 1 to 1 मेंटरशिप, कि वो सामने वाला तुमको टाइम दे रहा है, टाइम का कीमत है, यस और टाइम के साथ सामान भी यस दे रहा है। टाइम तो दे रहा ही है, राइट सामान भी दे रहा है, स्कोल्डिंग भी राइट दे रहा है, सब कुछ उसको मिल रहा है। ये चीज मेरे हिसाब से सबसे जरूरी है, जो एक यूनिक टाइप का सर्विस है, मेरे को नहीं लगता कोई करता है। दिस नोबडी इज यस डूइंग दिस। कि उसको करने के लिए भी नॉलेज होना पड़ेगा अलग अलग फील्ड का। अब हम है आपको ऑडिट का ज्ञान दे सकते हैं, टैक्सेशन दे सकते हैं, एफडीडी दे सकते हैं, वैल्यूएशन दे सकते हैं, मर्जर एक्विजिशन दे सकते हैं, स्टेट इंटरनल ऑडिट में जाना है, कोई को फॉरेंसिक ऑडिट जाना है, हर किसी का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है।
कोई को R2R प्रोफाइल में हम्म जाना है, कोई को H2R प्रोफाइल में जाना है, कोई को प्रोक्योर टू पे में जाना है, ऑर्डर टू कैश भी जाना है, लीगल एंटिटी रिपोर्टिंग आता है, अलग अलग प्रोफाइल है, प्रोडक्ट कंट्रोलर है, हर किसी का डिमांड अलग है। तो अपना डिमांड के हिसाब से हम लोग को पता है कि हाँ इसको क्या है। दैट इज वेयर आई हैव आल्सो ट्राइड टू इम्प्रूव माई सेल्फ ऑन अ डेली बेसिस, कि हर एक प्रोफाइल में क्या क्या चीज आ सकता है। वी नीड टू कीप आवर सेल्फ अपडेटेड ऑल्सो। मान के चलिए स्टेट ऑडिट एग्जाम्पल लेता है, कि इंडेस लेता है। आजकल जो सीए फ्रेशर को इंडेस में जो सवाल पूछता है, वो असिस्टेंट मैनेजर को भी नहीं पूछा जाता है। यस सर। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। वी नीड टू कीप आवर सेल्फ अपडेटेड। यस। कैंपस में भी आया, कोई कंपनी आया, वो लोग इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन एक सीए फ्रेशर को पूछ रहा है और किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर रहा है। हाइट्स का बात है, किसी को हम्म सिलेक्ट नहीं कर रहा है, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ पूछ के सबको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपडेटेड भी रहना पड़ता है, चाहे आपको या मेरे को। इवन आई हैव टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड। वो नॉर्मल इन क्वेश्चन नहीं डेप्थ नॉलेज पूछता। जरूरी है ना आजकल। इन डेप्थ नॉलेज जरूरी है, और आजकल ये प्रैक्टिकली चेक करता है कि आपको प्रैक्टिकली कितना आता है। प्रैक्टिकल नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या लगा प्रैक्टिकल नॉलेज का कितना बड़ा रोल प्ले होता है? आर्टिकलशिप नहीं करके आए, शटअप हमसे करके आए, क्या दिक्कत आता है? बहुत दिक्कत आता है। बहुत ज्यादा, क्योंकि फंस जाते हैं, इंटरव्यूअर पकड़ लेता है कि अगर हम थेरेटिकल बोल रहे हैं ना, तो एक्चुअली ही और शी वांट टू एक्सप्लोर मच अबाउट टू ड्रिल दैट प्रोसेस, that how we conduct, how you conduct the actually I give the one interview he about the internal audit profile. He has actually I explained the P2P and H2R process. He has further question about that the you can conduct, you can go to the internal audit and how many the employee are in that organization in that time. And actually I confused that the number of employee I can't remind because I don't do actually the audit, so he can drill on that point to know what is you can the practical exposure or not. So if we attend the session on regular basis, then this can problem can solve easily, and I we can explain And even all we have the made the question. material also now. That material is also Yes. available. Written material is there, video content is there, so that आप अपना घर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इतना इतना कंसाइज मटेरियल है कोई भी प्रोफाइल का, विद क्वेश्चन आंसर, विद अंडरस्टैंडिंग की, वो भी चीज है। और एक रेज्यूमे कितना इंपॉर्टेंट होता है वो बताइए। रेज्यूमे इज सो इंपॉर्टेंट, पीपल डोंट प्रॉपरली मेक द रेज्यूमे। हाउ इंपॉर्टेंट इज योर रेज्यूमे? Yes. Yes. Firstly, resume तो है important. In this program, we can also learn that the how we can update our Naukri profile, LinkedIn profile, because mostly the job calls are on from the Naukri profile. So we can this program has explained us that how we prepare the resume and what is the highlight keyword in our resume. So company has whenever see our resume much effect on that profile. So resume is important, Naukri profile is so important. So firstly, it is the step to do. रेज्यूमे इज वेरी इंपॉर्टेंट। First रेज्यूमे step. इज लाइक अ, रेज्यूमे आपको बता देता है, आदमी आपका रेज्यूमे देख के पता चल जाता है आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। रेज्यूमे में कंटेंट मैटर करता है, ऑलवेज ऐसे। कंटेंट आप अगर झूठ बोलोगे तो पकड़ जाएगा इंटरव्यू में, और सच लिखोगे तो कोई लेगा नहीं। तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। सच लिखोगे क्योंकि तो लेगा नहीं इंटरव्यूअर कोई, मेन और झूठ कोई लिखोगे तो इंटरव्यूअर पकड़ में तो आ जाएगा मेन आदमी जाके। हाँ जी। रेज्यूम मैं क्या ज्यादातर इंटरव्यूअर रिज्यूम ही पूछते हैं। रिज्यूम देखा और ये आपने लिखा है और आपने ये किया है या नहीं किया, तो उनका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन यही होता है। तो हाँ, रिज्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रेज्यूमे में वही लिखना है जो वो चाहता है, प्रोफाइल चाहता है। अब अगर ऑडिट का यस। प्रोफाइल है और अब टैक्स का लिख के जाएगा तो नहीं लेगा वो। टैक्स में ऑडिट लिख यस। दे तो नहीं लेगा। वो भी एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, कि आपका जो प्रोफाइल है वही चीज आपको रेज्यूमे में लिखना है, वो चीज आपको आना चाहिए। नहीं आता तो वो नहीं लेगा। क्यों लेगा? उस कोड भी यस। आदमी है लेने के लिए, वो क्यों आपको क्यों लेके आपको सिखाएगा? आप क्या कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अगर टैक्स से डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स या ट्रांसफर प्राइसिंग में घुसना है, और आपको आता नहीं है काम, आर्टिकलशिप पे नहीं किए है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपको वो सामने वाला पैसा दे के काम सिखाएगा? यस दैट सर। इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको पर्टिकुलर काम नहीं आता है। आप कैसे सोच सकते हैं कि आप 3 4 10 क्वेश्चन पढ़ के आप इंटरव्यू में क्लियर तो कर देगा, पर वहां पर तो आपको काम करना है ना। आपको थोड़ी ना वो आर्टिकल देगा काम सिखाने के लिए।
ये कोई आदमी देगा, ये ट्रेनिंग Yeah. देगा। ट्रेनिंग का मतलब ही आदमी नहीं समझते। ट्रेनिंग का मतलब होता है सॉफ्टवेयर सिखाएगा। आपको थोड़ी ना बैठ के स्टेट ऑडिट या इंटरनल ऑडिट या डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स या ट्रांसफर प्राइसिंग कोई सिखाएगा। कोई मैनेजर आके थोड़ी ना आपको बोलेगा चलो डायरेक्ट टैक्स सिखाता है आपको बैठ के। इट इज नॉट गोइंग टू बी प्रॉब्लम। Yeah. ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब होता है आपको कल्चर के बारे में बताएगा, आपको बताएगा कि पीएफ का पैसा कैसे कटता है, ये कैसे होता है, सैलरी स्लिप कैसे होगा, इंडक्शन होगा आपका। ट्रेनिंग का मतलब वही होता है, सॉफ्टवेयर सिखाएगा आपको। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको काम सिखाएगा बैठ के कोई। दैट इज द बिग प्रॉब्लम विद पीपल। Yes. दे थिंक कि Because दो they चार क्वेश्चन। already हाँ Yes, because he already thought that the he or she has a CA, that he has a knowledge about that thing. He हाँ, can't explain one to one ऑलरेडी प्रॉब्लम क्या है कि process. ऑलरेडी स्किल्ड पीपल है। एक तो सीए इतना ज्यादा Yes, निकल रहे हैं मार्केट में, ऊपर से वैकेंसीज कम है, तो ऑलरेडी वो लोग क्या, ऑलरेडी स्किल्ड पर्सन है। तो वो पैसा में जब उसको स्किल्ड आदमी मिल रहा है जिसको ऑलरेडी आता है वो काम, तो क्यों पैसा लगाएगा वो आदमी के ऊपर में जिसको काम सिखाना पड़ेगा? दैट इज द लॉजिक बिहाइंड द एम्प्लॉयर, राइट? कि ऑलरेडी जब स्किल्ड एम्प्लॉय इतना इंडिया में है, तो ऑलरेडी क्यों लेना चाहेगा उसको जिसको नहीं आता है वो चीज? अगर वो घुस भी जाता है, मान के चलिए कोई ने इंटरव्यू क्वेश्चन पढ़ के, मान के चलिए इंटरव्यूअर का मूड अच्छा है और ले लिया, आपको बाई चांस ले लिया। बहुत एक्सेप्शनल केसेस में ले लेता है, बहुत कम केसेस होता है, पर ले लिया। कोई का चेहरा पसंद आ गया, कुछ ना कुछ पसंद आ गया, ले लिया, उसका मूड अच्छा था, कोई रिलेशन बन गया, कुछ ना कुछ हुआ, ले लिया। बाद में तो काम तो करना आपको ही है ना। दैट इज द प्रॉब्लम मेनी पीपल। दैट इज वाई दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव। वो जब मतलब बिग फोर में नहीं सर्वाइव कर पा रहा है, इंडस्ट्री में नहीं सर्वाइव कर पा रहा है, ऐसी भी प्रोफाइल में नहीं कर पा रहा है, वो प्रोफाइल में नहीं कर पा रहा है, बिकॉज वहां पर में सर्वाइव इसलिए नहीं कर पा रहा है, बिकॉज अब आपको कोई सिखाएगा तो है नहीं काम। पहले तो काम भी नहीं सिखाएगा। yes, दूसरा, आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि अब आपको काम सिखाए कोई बैठ के, वो होने वाला है नहीं। आप चाहेगा, आप यू विल एक्सपेक्ट कि सामने वाला आपको काम सिखाए बैठ के। या कोई फ्रेंड मिल जाए उधर में आपको hmm, काम सिखाए, फ्रेंड को भी तो काम दे के रखा है उधर में। दैट इज द प्रॉब्लम yes, मेनी yes. पीपल फेसेस, Burden इसलिए हाँ, बर्डन आ गया आपके ऊपर में। दैट इज वाई अगर आपको पहले से काम आता है, एटलीस्ट आपको 50 to 60% अच्छा खासा ओवरव्यू नॉलेज है, तब अगर सामने वाला को समझाएगा भी तो आपको समझ में आएगा वो चीज। आपको काम ही नहीं किया अपने आर्टिकलशिप में, तो कैसे कर लेगा उधर में अचानक से? तो दैट इज वाई आपको प्रैक्टिकली चीज आना चाहिए, और ये चीज हम लोग अच्छा से करवा पाता है। देखो, भोजन प्रैक्टिकली पूछता है कि कंट्रोल टेस्टिंग कैसे होता है, ये कैसे होता है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल क्या होता है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स होता है, तो हम बता पाते हैं कि भाई ऐसे करके होता है ये चीज, ऐसे करके होता है, ये ट्रांसफर yes, प्राइसिंग हो गया, कोई भी चीज होगा तो बताने का कुछ रहता है कि भाई ये कारण है, ऐसे ऐसे करके चीजें होता है। तो वो चीज बहुत जरूरी है। डायरेक्ट टैक्सेशन है, कोई क्लॉज हो गया तो यहाँ पर में ऐसे ऐसे करके काम होता है, ऐसे करके रिप्लाई टू सोकोज नोटिस बनता है, या ये चीज बनता है। तो वो yes, रिटर्न कंप्लाइंस अगर कर रहा है तो ऐसे करके रिटर्न कंप्लाइंस होता है, ऐसे करके फाइलिंग होता है थोड़ा बहुत। तो एटलीस्ट उसको अब नॉलेज हो गया कि हाँ ऐसे बोलना है वहां पर में, और ऐसे करके यहाँ से पढ़ना है, मटेरियल भी पता चल गया, कल को ऑफिस में फंसेगा नहीं वो। कल को कोई काम मिल गया, उसको पता ही हो कहाँ पर रेफर किसको करना है, क्या मटेरियल रेफर करना है, क्योंकि काम तो कोई देगा नहीं आपको, काम तो आपको सीखना ही पड़ेगा पहले से। तो मैं ये भी एक सजेशन देता हूँ सबको, अगर आपका जॉब लग भी जाता है कहीं पर, और 2 महीने का टाइम आपको मिल रहा है, तो 2 महीने का टाइम एकदम भी टाइम पास नहीं करके वो ऑफिस का जो भी काम होता है वो सीख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा हमेशा ये सजेशन रहता है कि अगर आपको 2 महीना का टाइम मिलता है एज अ सीए फ्रेशर, कि 1-2 महीना का टाइम मिल रहा है, कोई भी प्रोफाइल में जा रहा है, वो प्रोफाइल के बारे में इन डेप्थ नॉलेज आपको पहले से कर लो, या नेटवर्किंग करके, या काम सीख के, या सीए फर्म में काम करके कहीं पर भी। बिकॉज वंस यू आर इन द जॉब, मैंने देखा है, वंस यू आर इन द जॉब नो बडी विल रियली हेल्प यू, नो बडी इज गोइंग टू हेल्प यू, नो बडी हैज टाइम टू हेल्प यू, और आपको डेडलाइन दे दिया जाएगा। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। डेडलाइन पे डेडलाइंस दिया जाएगा, एंड अगर आपको काम नहीं आता और आपको डेडलाइन दे देगा तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सर्वाइव करना, ऐसे ही yes, मार्केट रिसेशन में। एंड दैट इज व्हाई आई फील कि आपको बहुत ज्यादा सीखने का दरकार है। सीए फील्ड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ, सीए फ्रेशर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लर्निंग, आई फील। चाहे वो प्रैक्टिकल नॉलेज हो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे वो पर्सनैलिटी क्यों ना हो, आपको हर चीज अच्छा, चाहे वो नेटवर्किंग क्यों ना हो। नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको नेटवर्किंग से डर लगता था, नेटवर्किंग कितना जरूरी है बताइए, बिना नेटवर्किंग का क्या ही कर पाएगा कोई? हाउ मच इंपॉर्टेंट इज नेटवर्किंग, डू यू थिंक? yes. Because our एक होता है ना कि हम अपने ही वो चक्कर में घूमते रहते हैं, तो नेटवर्किंग से हम चीजें सीखते हैं, हमें पता लगता है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, कि कोई जॉब आई है या कुछ, कैसे फॉर एग्जांपल हम कोई इंटरनल ऑडिट में जा रहा है, तो कैसे वो इंडस्ट्री, हाउ मच दे फेस द चैलेंजेस, तो
बहुत जरूरी है नेटवर्किंग आज के टाइम में, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। जिसके पास नेटवर्किंग है, दे कैन सर्वाइव ओनली, हाँ, वी कैन नेटवर्किंग से करने से इन सर्वाइव टुडे कर वर्ल्ड। पाएंगे। कल कोई अपॉर्चुनिटी है, किसी से हेल्प लेना है, यू आर इन सम ट्रबल, you need some help. If you have network, you can get into some network and get some help out of that network. Networking is very important. जो बोलता है इंट्रोवर्ट रहेगा, बात नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, इट इज अ प्रॉब्लम। कोई चीज समझना है, कोई काम आपको नहीं आता है, आपका कोई फ्रेंड है जो दूसरा सीए फर्म में काम करता है, यू कैन डेफिनेटली गेट। कितना बार क्या होता है, अपना सीए फर्म में जो आप काम कर रहा है, जो भी अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, वहां का आदमी हेल्प नहीं करेगा, पर आपका रिलेशन है कोई दूसरा फर्म का दूसरा आदमी के साथ, और आपको काम समझना है, आपको डेफिनेटली अगर नेटवर्क रहेगा, आप जल्दी से काम सीख सकते हैं। यस, इट इज पॉसिबल, बिकॉज दैट इज सेम ऑल्सो वेरी ऑर्गेनाइजेशन में, यस, सेम डिफिकल्ट ऑर्गेनाइजेशन होता में है। वो चैलेंज हो सकता है कि थोड़ा जेलसी या थोड़ा वो होता है, हाँ पर जो राइट, नेटवर्किंग है राइट। सेम ऑर्गेनाइजेशन आपको उसमें हेल्प इतना ना मिले, पर आपको दूसरा यस, ऑर्गेनाइजेशन से वो काम सीखना आपको इजी हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ नेटवर्किंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेटवर्किंग अगर आपको आता है तो आप काम जल्दी सीख पाएगा, बहुत जल्दी से कोई भी काम आपको नेटवर्किंग के बदौलत बहुत इजीली आप काम सीख सकते हैं। इनफैक्ट हमने आर्टिकल से भी अच्छा नहीं करते हुए भी नेटवर्किंग के बदौलत ही बहुत काम सीखा। कि नेटवर्किंग इतना स्ट्रांग होने के कारण मेरे को एग्जैक्टली पता था कि दूसरा सीए फॉर्म में भी क्या काम होता है, कैसे होता है, एग्जैक्टली कैसे होता है, तो कैसे पॉसिबल हुआ नेटवर्क बना के। आप नेटवर्किंग से फ्री में काम सीख सकते हैं। जिसका आपको पैसा देना पड़ता है, वो नेटवर्किंग के कारण आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीख सकते हैं, अगर आपको नेटवर्क बनाना आता है तो। नेटवर्किंग इज सो इम्पोर्टेंट। यस, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, काम हो जाएगा, अल्टीमेटली आपको भी दूसरा को हेल्प करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आप ही हेल्प लेते रहो, दूसरा का हेल्प नहीं करो, उससे तो नहीं होगा। बट नेटवर्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज वाइट इन जीएस प्राइम ऑल्सो हम लोग नेटवर्क करवा पाता है। नॉर्थ को साउथ से मिलाता है, यस, ईस्ट को वेस्ट से मिलाता है। वी आर ट्राइंग टू नेटवर्क विद पीपल। किसका हिंदी खराब है, किसका इंग्लिश खराब है, लेट्स मेक द साउथ इंडियन जिसको हिंदी नहीं आता वो लोग सीख जाते हैं यहाँ पर आके। नॉर्थ इंडियन को इंग्लिश नहीं यस, है तो यस, साउथ इंडियन से सीख जाता है। हाउ इट इज पॉसिबल, बिकॉज हम लोग लैंग्वेज को बैरियर ही नहीं है यहाँ पर में, देयर इज नो बैरियर ऑन यस, लैंग्वेज। आई टेल यू, हिंदी बहुत जरूरी लैंग्वेज है सीखना, बहुत जगह में। बिकॉज अगर आप बिग फोर इंडिया में काम करेगा, कुछ कुछ क्लाइंट हिंदी बोलेगा, तो अगर आपको हिंदी नहीं आता तो समझेगा नहीं, डेटा कैसे लेंगे आप। सर मान के चलिए यस, आपको अगर सीए फर्म में काम करना है, कोई टॉप 10 सीए फर्म, और वो इंडियन क्लाइंट है उसका, तो उसको इंग्लिश नहीं आता है कितना बार क्लाइंट को, तो यू नीड टू टेक द क्लाइंट डेटा, एंड आपको हिंदी भी जानना जरूरी है। मेरे हिसाब से हिंदी तो बहुत जरूरी है, इंग्लिश भी जरूरी है, हिंदी भी जरूरी है। मोस्ट ऑफ द केस हिंदी इज वेरी हिंदी इंपॉर्टेंट। जरूर। अब आप बिग फोर ग्लोबल में जाएगा तो इंग्लिश जरूरी होगा, बिकॉज ग्लोबल क्लाइंट है, वहां पर आप हिंदी बोलने से होगा ही नहीं। क्लाइंट आपका लैंग्वेज नहीं समझेगा, आप उनका लैंग्वेज नहीं समझेगा, और उनका लैंग्वेज भी समझना जरूरी है, तो इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको कोई, यस, अगर मान के चलिए साउथ में तो वर्नाकुलर लैंग्वेज भी बहुत जरूरी होता है, अगर कोलकाता में तो बंगाली थोड़ा बहुत आपको जरूर सीखना चाहिए। तो दैट इज समथिंग, लैंग्वेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। कि डिपेंडिंग ऑन स्टेट आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरीका का है, डेफिनेटली अगर आपको लैंग्वेजेस डिफरेंट टाइप का आता है, तो लैंग्वेजेस डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में एज अ प्रोफेशनल। डेफिनेटली आप रिलेशन जल्दी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनता है जितना लैंग्वेजेस आप सीखते हैं, तो लैंग्वेजेस भी एटलीस्ट आपको मोटा मोटा एटलीस्ट ये तो आना चाहिए कि आप समझ में आ रहा है सामने वाला क्या बोल रहा है। भले आपको यस, खुद नहीं आता, बट यू शुड बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड, समझने में आना बहुत जरूरी है कि व्हाट द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू से। ठीक है। आई यस। थिंक इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन विथ यू, एंड यू शेयर्ड ऑल द things about her, and this is great. Your feedback will really help us. Anything last thing that you want to suggest to any people, like anything? Actually, Mm. firstly, I thank to you again, because I don't instit and actually I don't regret to join this program. So this is the most important thing, and you invest our time in good time. So it was a really nice discussion and really motivate, and you are very motivate person. So one to one. So I thank you, and this program helped me a lot. Great. I Thanks. think it was great. Thank you to you also that you gave us and gave such a nice feedback. This will really help us grow. And do connect to my channel. We have created a lot of content for the CA freshers, it's our CA experience as well. So go through our channel, go through our videos. Our videos will really help you to understand each and every topics in deep detail. It is in Hindi also. Some of the topics are in English also. So you'll not have a problem with the languages, and you can connect with me anytime. You can also follow me and LinkedIn also. I try to be active in LinkedIn as well as much as possible. So try to follow me in LinkedIn as Sure, much as sure, sir, possible, sure. and that will really help you. Thank you so much. Thank Nice you to so talk to much. you, sir. Yeah. Okay, bye. Mm, mm. Thank Bye. you. Bye.